But in many Mediterranean and Latin countries such as Argentina, Brazil, तो Colombia, हमारे जैसे कोई नहीं करता Cuba, ये। Spain, Italy, and Portugal. सर शायद आप जानते ही होंगे कि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो दो तरीके से करते हैं। हाँ एक तो हम बोल के बातचीत करते हैं, बिल्कुल एक हम हाथ के इशारों से बातचीत करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो आप सर बताना चाहेंगे हाथ के इशारों की बातचीत से आप क्या समझते हैं? ये अक्सर वो कई जगह ये ऐसा मौका आता है बोलने से लगते तो हाथ के इशारों से काम करना पड़ता है। कहीं ऐसा मौका आता है वो हाथ के इशारे नहीं वो अपने जो आगे सामने बात कर लेते हैं। ये दो चीज़ें क्या अब जैसे किसी को बुलाना है तो या ये बोलेगा भैया भैया अपना कर वहाँ नहीं देते। अब जैसे किसी ने बोला कि भाई सब ठीक है, हाँ भाई सब ठीक है, भाई ऐसे बात करते हैं बंदे। तो ज़्यादातर तो मुंह से बात करते हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हाथ के हाव से बात करते हैं। जैसे किसी को बुलाना हो, किसी को इशारा देना हो, किसी को चुपचाप करना हो, शोर कर दिया हो कोई। सर अक्सर ये होता है कि इंसान जब दूर होता है तो दूर से इशारा करना पड़ता है। इधर अब इतनी दूर आवाज़ हो जाएगी नहीं तो हाथों से या भेजना पड़ता है, या किसी बच्चे को जो है कि चुप या आंखें दिखा के इस तरह के करना पड़ता है। ठीक है सर, आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया भर में लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं जी। इशारों की भाषा जो होती है जी। उसका इस्तेमाल करते हैं जी लेकिन सभी जगह पर हाँ। इशारों का मतलब एक जैसा नहीं निकलता। क्या बात कर रहे हो साहब, ये कौन सी बात है? जी सर, वही आपको दिखाने वाले हैं कि एक ही इशारा है हाँ। लेकिन अलग अलग देशों में उसके मतलब अलग अलग निकल जाते हैं। ऐसा तो साहब ये चलो देखते हैं सब वो भी क्योंकि या अभी तो जो मैं ये समझ तो आएगा जो शब्द है एक ही, लेकिन जो आप कह रहे हो सकता है तो ऐसा भी चलो देखते हैं। तो क्या सर आपको लगता है कि दुनिया भर में जो हाथ पैरों के इशारे हैं वो अलग अलग होते होंगे? बिल्कुल सर, एक तरीके होते हैं मेरे हिसाब से तो। और जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है तो यूँ पड़ के गुस्सा करा भाई ये, या किसी को आंखें डराना हो और किसी कुछ चीज़ छोड़ना हो तो छोड़ो यार, जान दो यार। या किसी को भेजना हो तो, या किसी को बुलाना हो तो मुझे लगता है कि अलग अलग हिसाब कुछ होता होगा इशारों का कुछ दुनिया भर में। Hello everyone. Body language can be a funny thing. Depending on where you are in the world, certain gestures can either mean you're making a new mate or landing yourself in hot water. In this video, we're going to look at the definition of hand gestures around the world. The okay. In most of the English-speaking world, as well as in some other countries, this hand gesture means that everything is fine, great, okay, or perfect. In Brazil, however, it is considered a rude gesture, equivalent to the one-finger salute. The most famous example of this was in the 1950s when Richard Nixon visited Brazil and flashed the OK sign to a waiting crowd upon arriving in Rio de Janeiro, who responded with boos. The horn. In USA, this gesture is adopted by rockers as a sign of approval and, in essence, to rock on. But in many Mediterranean and Latin countries such as Argentina, Brazil, Colombia, Cuba, Spain, Italy, and Portugal, to make this sign at someone is to tell them that their spouse is cheating on them. The fingers all together. In Italy, this gesture means, "What is this?" or "What do you want?" But in Democratic Republic of Congo, this gesture is a sign for a small amount of something. In Turkey, however, it indicates that something is beautiful or well. And in Egypt, it's a motion to show you'll only be a minute. The thumbs up. In most countries, this gesture is a sign of approval. In some other countries, however, such as Iran, Iraq, or Afghanistan, this gesture is seen as an up yours. The crossed fingers. In the UK, Australia, USA, and Canada, this gesture of crossing one's fingers is to wish for good luck. But it is a whole different meaning in Vietnam. This gesture is seen as lewd in Vietnam because crossed fingers are said to resemble female genitals. The V sign. In USA, this is a harmless backward sign for peace. This sign is seen as rude and frequently used to signify contempt or defiance towards authority. The come here.
In the English-speaking countries such as UK, Australia, USA, and हमारा तो Canada, ऐसे this बुलाते हैं। gesture is used to motion somebody to come over. But in the Philippines, this gesture is considered highly offensive when motioned to another person because this gesture is reserved for dogs. The point. In European countries like Belgium, the Netherlands, Germany, and Austria, this is considered as a gesture for the number 2. In China, however, it is a gesture for the number 8. And in Italy, this hand gesture is used to indicate that something is not good. ऐसा The downwards palm wave. In the UK, Australia, USA, and Canada, this gesture indicates go away. And it is usually used to हमारा तो shoo आशीर्वाद देते हैं इस तरह somebody से off. यार, सर के ऊपर हाथ रख के। In Philippines, बोलते हैं, Vietnam, रुको। India, and Ghana, this gesture indicates come here, because having an upwards palm is considered rude in these countries. हाँ, वैसे Hence, बोलते हैं यार, the पास आ जाओ। downwards palm approach. The chin flick. In France, Belgium, and Tunisia, the chin flick is used to express supreme disinterest ऐसा or to tell someone to get lost. ऐसा And in Italy, it is used to express I don't give a damn. तो दाढ़ी सही करते The हैं यार। fist and elbow. In many Latin countries, such as Mexico and South Americans, this gesture is known as the tacano. यहाँ तो And ताकत it दिखाते हैं बल्ले। means stingy, बाड़ी दिखा। because it illustrates that the recipient rarely extends their arm to pay the bills. In Austria Sure. and Germany, however, this gesture indicates that the recipient is an idiot पूरा and their बाप रे। brain is in their elbow. The forehand fist. In Brazil, this gesture is most effective with अब कोई multiple बुरा होता grunts, नहीं जब पढ़ते हैं and ना it is कैसे done to इनको indicate stupidity. The thumb in a fist. In Australia, UK, and Canada, the thumb in a fist is a common playful gesture used by adults towards children, pretending to have stolen a child's अरे वाह यार। nose. In Turkey, however, this is seen as aggressive and हाँ। rude. अच्छा The outward hand. In Greece, Africa, and Pakistan, this gesture is seen as insulting or confrontational, as this gesture evolved from the traditional practice of rubbing dirt, feces, or ashes into the faces of convicts. The awkward turtle. In the USA, this is used as a public acknowledgement that one's gaffe has caused social embarrassment. अरे बाप। And in American Sign Language, this gesture means platypus. हमारा तो मछली मछली की रानी उड़ती है इसकी यार। वारे दुनिया वारे खेल ये अपन तो समझते थे कि वो लेकिन सब यहाँ तो सबका बोलते हैं अपने आप कुछ नहीं मैं कुछ अब पहुँची जैसे अपन कहीं गए और कुछ पीछे अपन हाथ देगा आओ तू जिस जगह अपने मालूम नहीं हो तो जा अच्छा वहाँ तो कोई बात नहीं लेकिन जहाँ उसका मतलब गया तो वहाँ से अपने को जूते कागज पड़ सकते हैं या बिजली होने पड़ सकता है कमाल की चीज़ है सब। मैंने देखा कि एक जगह जो है कि इस तरह से इशारा करा, हमारे वहाँ इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह से भी कभी कभी कर लेते हैं। बाकी एक जगह देखो कुत्तों को बुलाते हैं, वो थोड़ा सा मुझे बहुत अलग ऐसा लगा। सर एक देश में जो इसका मतलब रहता है वो प्रार्थना करते हैं, कुछ ना कुछ कामना करते हैं, और एक देश में इसका मतलब लेकर ऐसा लेकर जाए कि मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, उसको बहुत ही गंदा माना जाता है। वो हमारे वहाँ तो यूँ करके प्रार्थना करते हैं इसी सर मैंने देखा कि ऐसे चुटकी भर मतलब कुछ चीज़ दे दो तो वो थोड़ी थोड़ी सब जगह सेम ही लगी मेरे को, कुछ ऐसा अलग नहीं लगा। और एक जगह लगा मेरे को कि वो इस तरह से वो होता है इशारा, मतलब कि अच्छा बढ़िया लाजवाब टनटनाट, और वो एक देश में तो बहुत गलत मसला था वो, तो वो बहुत ज़्यादा मुझे अटपटा लगा वो। अब सब क्या है कि ये जो हाथ के जो है इशारे या अपन इंसानों में भी नहीं है, यानी ऐसे जानवरों में भी ऐसे है। अब ये जैसे कुत्ते बार बार वो हाथ को कर इसका मतलब ये कि वो किसी को ढूंढ रहे। अब जैसे बकरा बकरी उनके अगर इशारा करो कहीं तो वो भी आप समझते कि ये मेरे को मिला जाए। अब जैसे कुत्ता भगा भगा आ जाए जब जो करो सुबह कहीं भाई मार दो तो वो भी पीछे भग जाता है। तो ये सब इंसान ही एक कुदरती दुनिया में ही है, क्या इंसान हो क्या जानवर हो। सर वो अमेरिका में देखा कि इस तरह का जो इशारा है उसका कुछ अलग ही मतलब है, लेकिन हमारा अक्सर जो इस तरह का करते हैं तो बच्चों को खिलाने के लिए कविता पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी। जब जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आदमी दिन भर में 100 बार अगर बात करता हो तो जहाँ तक मैं मानता हूँ 50% तो वो हाथ के इशारे से बात करेगा और 50% ज़बान से बात करेगा। सर मैं तो सोचता था कि
भाषा अलग हो सकती है लेकिन इशारे भी अलग हैं। अगर अपन कहीं फंस जाओ तो सोचता था कि चलो अपन इशारे करके जो है कि कुछ चीज़ बोल सकते हैं उनको, क्योंकि भाषा तो याद नहीं है। बाकी यहाँ अगर इसे अगर फंस जाओ तो उल्टी मार खा जाएंगे अपन। अब जैसे कि खाने का बोल सकते हैं और पानी का बोल सकते हैं, अगर अपनों ने हाथ नहीं ऊपर कर दिया तो वो दिक्कत ये है कि वो डायरेक्ट उधर चलेगा शराब की तरफ, शराब मांग रहा है। और साहब ये गूगल में मिला कि ये जो वीडियो देखी इससे कह देगा कि हाँ जानकारी मिली अपने को कि कका कोई सी चीज़ अच्छी है, कका कोई सी चीज़ बुरी है, ताकि आदमी आगे जाके धोखा नहीं खाए, बहुत अच्छी जानकारी सब। जबान के साथ हाथ पैर चलना तो कुदरती बात है। अब अगर मैं हाथ यूँ करके बैठ जाऊँगा तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं बंधा हुआ बैठा हूँ, उलझन से लेकर आत्मविश्वास भी मेरा कम हो जाएगा।